Good morning all students. Discuss the topics BSc part first, BSc part first, paper second, botany, and today are about discuss the topics. Last discuss the white rust of crucifer disease, and today discuss white rust of crucifer disease. Crucifer disease caused by fungus Albugocandida, and it is have a host of white rust Brassica campestris. So class BSc part first and paper second botany. And last topics discuss the white rust of crucifers, symptoms like a symptoms, host, pathogens, etc. So sometimes of discuss host, pathogens and symptoms. Disease caused by pathogens, and white rust disease caused by Albugocandida. Albugocandida is a fungus, so it is a parasitic fungus and obligate parasitic fungus. So today our topics: white rust of crucifer. White rust of crucifer. So host, mustard, radish and cabbage, and pathogen Albugocandida. Disease caused by pathogens, and pathogens are symptoms show on the host. So first characters of name of host, and second characters of geological position या geographical positions and habitats, and next symptoms. Symptoms already discussed the disease like a obligate parasites है, endoparasitic है, mycelium are branched, coinocytics it is, etc. So study today etiology. Etiology is study of pathogen and its characters. Etiology have a study of pathogens and its characters, and pathogens Albugocandida and its characters. Pathogens characters. So first characters of obligate, endo parasites. Obligate parasites caused or disease cause are not disease of other pathogens, other host plant.
not cause a disease, not causes of disease other host plants. Only disease cause only one families like a crucifer family and others name of Brassicaceae family. Crucifery family, other name of Brassicaceae family. So endoparasitic pathogens are obligate and its obligate endoparasite are cause only Brassicaceae family disease like a mustard, like a radish and like a cabbage, but it is not cause of disease other host plants. Other host plants. So etiology have a pathogens. It is pathogens of Albugo candida. Albugo candida is a fungi. So fungi are three types. First types parasites fungi and second type saprophytic fungi and third types symbiotic fungi. Parasitic fungi are depend on other host plants. Saprophytic fungi are depend on dead plant bodies. Parasitics are depend on living host plant. And saprophytic fungus or live on dead body or symbiotic fungus are symbiosis formation. So Albugo candida are endoparasite. Only parasites are present. Two stage exoparasite and endoparasites, but Albugo candida only endoparasites, and it is obligate. Parasites are depend on behaviors, have two types, obligate and facultative. Facultative parasites are like a rust, white rust, black rust, brown rust of wheat, only facultative parasites, and other parasites only obligate parasites. So Albugo, it is a non-obligate endoparasites. And next then characters of it is a it is a mycelium. Second characters mycelium, because it is a obligate endoparasites. So mycelium have a intercellular mycelium and coinocytic positions, and mycelium are branched conditions. तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड कैरेक्टर्स mycelium, it is mycelium of
सेलुलर ब्रांच्ड, इंट्रासेलुलर ब्रांच्ड, कोएनोसाइटिक होस्टोरिया present. Intercellular myceliums are two types, intracellular and intracellular. Intracellular mycelium only infection of one cell, but intercellular mycelium are infection of multi cells. So Albugo candida pathogens or mycelium have a intercellular, it is a multicellular structure are infected and branched. Myceliums, it is branched and have a nucleus position. It have a nucleus position, so called are coenocytic positions, and postoria are present of myceliums. This is postoria. Postoria are use of observe of food material. Postoria are observe of food materials by like a tentacles, like a filaments, like a hostoria. So hostoria are present of myceliums pathogens like a Albugo candida. तो हम क्या कह सकते हैं कि एल्बुगो कैंडिडा जो एक माइसीलियम स्प्रेड आउट करता है डिजीज कॉज करने के लिए, तो जो एल्बुगो कैंडिडा है वो अपने होस्ट प्लांट के अंदर जब अपने माइसीलियम को फैलाता है तो वो सबसे पहले केवल एक ही कोशिका में इन्फेक्शन नहीं करता, जिस कोशिका में उसने एंट्री ली है उस कोशिका के अलावा बहुत सारी कोशिकाओं को क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। इसलिए कैसा होता है, इंटरसेलुलरी माइसीलियम होता है और धीरे धीरे वो उन सेल्स के बीच में क्या हो जाता है, अपनी ब्रांच बना लेता है बहुत सारी, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है ब्रांच्ड। एंड कोएनोसाइटिक्स यानी कि जितनी भी ब्रांच बनती हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, तो कोएनोसाइटिक पोजीशन होती है और इसी के साथ क्या होते हैं, उसमें होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फूड मटेरियल जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। और उन होस्टोरियों के द्वारा वो क्या करता है, रेगुलर रूप से फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करता रहता है और वो फूड मटेरियल अपनी होस्ट सेल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता रहता है, जिसके कारण प्लांट बॉडी के अंदर होस्टोरिया जो हैं वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट कर जाते हैं और पूरी मस्टर्ड प्लांट है, रेडिस का प्लांट है या फिर कैबेज का प्लांट है, उसकी लीफ पर, उसके स्टेम पर, उसके फ्लावर पर, उसके फ्रूट पर, उसके एटलीस्ट सीड तक भी क्या कर देते हैं, अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये तो हुआ उसके माइसीलियम की बात। अब इन माइसीलियम के जो अपेक्स पार्ट होते हैं, ये टिप पार्ट, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये पैथोजन कैसे कहलाते हैं, स्पोरेंजिएट पैथोजन कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं इन स्पोरेंजिया की कि किस टाइप से एक माइसीलियम जो है वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है और किस तरीके से वो इस डिजीज को आगे स्प्रेड आउट करता है। अब अपन बात कर रहे हैं इसके स्पोरेंजिया की, क्योंकि वैसे ही इसके अंदर कॉनिडिया भी बनते हैं, वैसे स्पोरेंजिया भी बनते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। यदि कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया बनते हैं तो वो कॉनिडियोफोर कहलाती है, और जो स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं, इसलिए वो स्पोरेंजिया कहलाती है। जैसे ये एक माइसीलियम
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो माइसीलियम है ये इसकी आउटर सरफेस है। जैसे ही इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर क्या बनना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये हमेशा किस सीक्वेंस में बनती हैं, बेसिपिटल सीक्वेंस में बनती हैं। बेसिपिटल सीक्वेंस में बनती हैं। ये इनका माइसीलियम होता है। इस माइसीलियम के इस एपिकल पार्ट के ऊपर ये स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती हैं। ये स्पोरेंजिया अपना डेवलपमेंट करती हैं और इस स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस फॉर्मेशन में होता है, बेसिपिटल सीक्वेंस में होता है। बेसिपिटल मीन्स फर्स्ट फॉर्मेशन एंड फर्स्ट मैच्योरेशंस। जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम बनेगी वो सबसे पहले ही क्या होगी, मैच्योर होगी। तो जैसे हम बात करें ये माइसीलियम, तो सबसे फर्स्ट टाइम ये मैच्योर हुई, ये आगे की ओर क्या कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब ये दूसरी वाली अब नीचे की ओर जैसे ये बनेगी तो ये आगे की ओर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके नीचे जैसे ये बनेगी तो ये और आगे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि सबसे फर्स्ट टाइम ये बनी स्पोरेंजिया, इसका मैच्योरेशन हुआ, सेकंड टाइम ये बनी। तो इनके गिरने का मैच्योरेशन जो टाइम पीरियड होगा वो भी यही होगा कि ये फर्स्ट बनी और फर्स्ट टाइम ही क्या होगा, इनका मैच्योरेशन होगा। और जैसे इसमें मैच्योरेशन होगा तो ये क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब सपोज करो कि ये एक स्पोरेंजिया है, इसके अंदर ये खूब सारे स्पोर भरे हुए हैं। ये एक स्पोरेंजिया है जिसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है। जैसे ही ये स्पोरेंजिया क्या होगी, अपना मैच्योरेशन करेगी, सो ruptures and spread out of spore, and spore are spread in soil, seed, air and field. So spores are spread in seed, soil, air and field. कि जो स्पोर हैं, जो स्पोरेंजिया से निकले हैं, ये सारे स्पोर क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। किसके द्वारा, किसी भी फैक्टर के द्वारा, कि एयर द्वारा या फील्ड द्वारा या बर्ड्स द्वारा या एनिमल्स द्वारा या सोइल द्वारा या फिर वो सीड के द्वारा क्या हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। तो जैसे ये एनवायरनमेंट में फैलते हैं तो ये सीड जो हैं जिन पे स्प्रेड आउट हुए हैं उनके ऊपर भी चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। या सोइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी ये अटैच हो जाते हैं। या फिर जो वो हैं एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। सोइल पार्टिकल्स पे भी क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। अब अटैच होकर के क्या करते हैं, ये अपना सबसे फर्स्ट टाइम अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन। Albugocondida have asexual reproductions and sexual reproductions. Two types reproductions. First, sexual reproductions and second type of asexual reproductions. Asexual reproductions. Asexual reproductions are completed to
sporangia and conidia because it spores formation of spore formations by sporangia but spore are not fusion. स्पोर तो बने हैं स्पोरेंजिया के अंदर, लेकिन ये बनने वाले जो स्पोर है इन्होंने अपना कोई फ्यूज़न नहीं किया, और फ्यूज़न नहीं करने के कारण ये सारे स्पोर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस मेथड के द्वारा होता है, स्पोरेंजिया द्वारा या फिर कॉनिडिया द्वारा। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर रिप्रोडक्शन समझाया था तो उसमें बताया भी था कि अपोजिट टाइप की स्पोरेंजिया बनती हैं, जिनमें से एक को कहते हैं एंथ्रिडिया और दूसरी को कहते हैं ओगोनिया। यानी कि एंथ्रिडिया जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है, और ओगोनिया जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है। तो जैसे ही अपोजिट टाइप्स के स्पोर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में वो आते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना मैच्योरेशन करते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद मैच्योरेशन करते हैं और फिर उनके मध्य क्या हो जाता है, फ्यूज़न। और जब अपोजिट टाइप के स्पोर आपस में फ्यूजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे 6 नंबर पॉइंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज it is a oogonia and it have female gametes and its oogonia antheridia and its oogonia. Antheridia and oogonia are attached by fertilization tubes. Contact and like a formation of fertilization tube. Fertilization tube. So fertilization tubes are transfer of nucleus antheridium to oogoniums, and oogonium is a female and antheridiums are males. So male and female sporangia are fusion by fertilization tubes. So formation of zoospore. Zoospore, loss of flagella. Loss of flagella.
flagella. So are called oospore. And oospore are germinations and next explanations of sexual reproductions. Antheridia and oogonias are contact by fertilization tubes, and antheridium have a male gametes या male spores and oogoniums have a female gametes या female spores. So fertilization tubes are used for antheridium transfer to oogoniums, and fusion are opposite spores. Opposite spores are formation of zoospores. Zoospores have a two flagella. Zoospore have a two flagella, whipless and tin cells, and zoospores loss of flagellas so called are oospore, and oospore germinations of sporophytic प्लांट प्लांट्स। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि जैसे ही एल्बुकोकॉन्डिडा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसमें एंथ्रीडिया बनती हैं और oogonia बनती हैं। ये एंथ्रीडिया और oogonia जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ फ्यूजन करवाती है और जूस्पोर बनाती है। जूस्पोर के अंदर जो फ्लैजिला होती हैं ये फ्लैजिला क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और इन फ्लैजिलाओं के गिरने के कारण धीरे धीरे इनके जो स्पोर होते हैं उन वो कैसे हो जाते हैं, जूस्पोर से oospore में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये oospore आखिरी में जर्मिनेशन करके और क्या बने देते हैं, पुनः एल्बुकोकॉन्डिडा का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। आज अपन ने बात करी इसकी पूरी एटियोलॉजी की। एंड सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एपिडेमियोलॉजी। Epidemiology is pathology terminologies and so explain of white rust disease spread out by different methods like a seed-borne, soil-borne and airborne pathogens. So next topics today discuss about of epidemiology. First characters of white rust. White rust of caused by seed and soil-borne. Epidemiology and first characters of white rust seeds. White rust of spread by soil, seed, soil and air. Second points, according to Sharma, Agarwal and Singh, Sharma, Agarwal and Singh 1944